Throughout the Bible, men and women have offered God what is of immense value to them. We want to encourage you that even during these difficult times, do not stop honoring God even with your finances. If you want to send your tithes and your offerings to Capital Christian Center, you have the information on the screen being shown right now. You can either send it through your bank transfer, you can add this bank account information into your beneficiary, or you can directly go ahead and do the transfer on Google Pay. Either ways, your offering or your tithe will be reaching CCC. We want to thank you and we pray that God blesses you for the sacrificial giving that you will be doing even during these challenging times. God bless you. Throughout the Bible, men and women have offered God what is of immense value to them. We want to encourage you that even during these difficult times, do not stop honoring God even with your finances. If you want to send your tithes and your offerings to Capital Christian Center, you have the information on the screen being shown right now. You can either send it through your bank transfer, you can add this bank account information into your beneficiary, or you can directly go ahead and do the transfer on Google Pay. Either ways, your offering or your tithe will be reaching CCC. We want to thank you and we pray that God blesses you for the sacrificial giving that you will be doing even during these challenging times. God bless you. Throughout the Bible, men and women have offered God what is of immense value to them. We want to encourage you that even during these difficult times, do not stop honoring God even with your finances. If you want to send your tithes and your offerings to Capital Christian Center, you have the information on the screen being shown right now. You can either send it through your bank transfer, you can add this bank account information into your beneficiary, or you can directly go ahead and do the transfer on Google Pay. Either ways, your offering or your tithe will be reaching CCC. We want to thank you and we pray that God blesses you for the sacrificial giving that you will be doing even during these challenging times. God bless you. Praise the Lord, church. Praise the Lord, church. मैं बोलना चाहता हूँ कि हम we are virtually joining each other through the church service, but I believe that the first thing that we should say as soon as we come, as we get ready to worship the Lord, is praise the Lord, like we do it as when we are in church. Let's all type
praise the Lord or whatever you want to write, and let's begin this wonderful church service and tell God how grateful we are. क्यों ना परमेश्वर को आप अपने Facebook में आप सभी को praise the Lord बोलेंगे. Praise the Lord, CCC family. We're so great that you have joined us today. For all the newcomers जो पहली बार हमारे service को join कर रहे हैं, we are blessed and privileged to have you with us. Let's worship the Jesus. Let's worship the King of Kings. You are Lord. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. One more time, say, you give life, you are love, you bring light to the darkness, you bring hope, you restore every heart that is broken. Lift up your voices, great. Time say, great are you, Lord. That's why we say, it's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. One more time.
परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। हम सब लोग मिलके ऊंची आवाजों में ताली बजा के हम जैसा घर में बैठे वैसे ही परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। हम एक साथ मिलके यीशु के नाम को हम तारीफ करेंगे। आमीन। आइए हम एक गाना को हम गाएंगे। वो गाना ऐसा कहता है, तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। हालेलुया। देखे हैं हमने लाखों ऐसे, पर तेरे जैसे कोई नहीं रे। ऐसे वैसे तो है कितने, पर दीवाने हम तो है तेरे। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही खुदा।
गाएंगे। सारा आदर सारी महिमा तेरा ही है यीशु, तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे है ऊंचा। यीशुआ, यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है, तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे है ऊंचा। यीशुआ, क्यों परमेश्वर को हम आदर दें। Jesus, you deserve the glory, Lord. You deserve praise. You are worthy. आदर के योग्य मसीहा, महिमा में विराजमान। Thank you, Lord. We adore you, Jesus. We give you all the glory and the praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Praise the Lord, church. I know times are hard and challenging, but God is in control of everything. If you would like to pay your tithes and offerings, we have two ways to do that. One is through Google Pay, and the number is on the screen, 9899470260. Or if you would like to transfer to the bank directly, you can see the number which is given on the screens. Whatever you do through Google Pay, we will transfer it from our Google Pay account to the New India Church of God North account and send you a receipt on WhatsApp. We are so thankful for your support. Take care, be safe, stay home. God bless you. I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ this morning. और आज सुबह मैं आप सब लोगों को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहता हूँ। Hallelujah. What a wonderful thing it is to be with the CCC family. और बहुत अच्छी बात है कि हम सीसीसी के परिवार के साथ हैं। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। I pray and believe that God was good to all of you in the last 1 week. और मैं आशा करता हूँ कि पिछले पूरे सप्ताह परमेश्वर आप सबके साथ अच्छा बना रहा। God's protection is what we need in our life. और परमेश्वर की सुरक्षा की जरूरत है हमारे जीवन में। Amen. आमीन। Nobody else can help us. और कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता है। And the virus has proven that God is the ultimate source and help for all of us. और इस वायरस ने ये बात को साबित कर दिया है कि सिर्फ परमेश्वर ही हमारी एक सुरक्षा प्रदान करने वाला एकमात्र स्रोत है। Otherwise, for every kind of sickness, we will run to some doctors. और मान लीजिए कि छोटी मोटी परेशानियों बीमारियों के लिए हम इधर उधर भागा करते हैं। We say that some doctor is there, some specialist is there, and he can take care of me. और हम इस बात पे आशा रखते हैं कि हाँ एक डॉक्टर होगा यहाँ पे वहाँ पे जो हमारी मदद करेगा और हमें चंगा कर देगा। But here comes a virus. लेकिन एक वायरस हमारे सामने आ गया है। And what happens? और क्या होगा? They don't have an answer for this. और इस वायरस के लिए हमारे पास कोई भी उत्तर नहीं है। Doctors are all putting their hands in the air. और डॉक्टर ने अपने हाथों को उठा लिया है। They are saying we don't have the answer. और वो कह रहे हैं इस प्रकार से कि हमारे पास इसका कोई भी उत्तर नहीं है। Amen. आमीन। But ultimately it is God who is the answer. लेकिन आखिर में सिर्फ परमेश्वर है इस
वायरस का उत्तर, even if there is medicine or no medicine. और हो सकता है कि शायद इसके लिए कोई दवाई बने या ना बने, I believe that we should put our trust in God. लेकिन मैं ये कहता हूँ और मैं मानता हूँ कि हमें अपने विश्वास को यीशु मसीह पे रखने की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, वचन कहता है some trust in chariots कुछ लोग तो उस रथों पे विश्वास करते हैं and others trust in, some others trust in horses. और कुछ लोग तो उन घोड़ों पे विश्वास रखते हैं, But we will trust in God. लेकिन हम सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास रखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Do you know that the currency of the United States of America, आप सब जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की जो मुद्रा है they call it dollar. उसको डॉलर के नाम से जाना जाता है, Dollar is their note. और जो डॉलर है वो उनकी मुद्रा है। And if you look at that note, अगर आप उस मुद्रा के ऊपर अगर देखेंगे, it is written like this: उधर कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, in God we trust. और परमेश्वर पे हम विश्वास रखते I हैं, like that. और मुझे बहुत पसंद है। Hallelujah. हालेलुया। The richest nation in the world, और दुनिया का सबसे अमीर एक देश, the most advanced country. और एक बहुत ही सबसे आगे रहने वाला एक देश, They have got everything that they need in this world. और इस दुनिया में जिन चीजों की जरूरत है वो सब उनके पास है, But they are saying, लेकिन वो कुछ इस प्रकार कह रहे their हैं, money is saying, और पैसा है, it is not because of our ability. और ये सिर्फ हमारी सक्षमता की वजह से नहीं है, What we are today is not because of anything that we have done. और आज जो भी कुछ है हम, ये सिर्फ हमारे वजह से नहीं है, It's all because of Him. और ये सिर्फ परमेश्वर की वजह से है। And their money is saying, in God we trust. और उनकी जो मुद्रा है वो कुछ इस प्रकार कह रही है कि सिर्फ परमेश्वर है जिस पे हम विश्वास रखते हैं। We should be like that. हमें भी उनके समान होना है, In everything in our life, हर एक चीज के लिए जो हमारे जीवन में है, every walk of our life, हर एक पायदान के लिए you and I should always say, हमें हमेशा इस प्रकार कहना चाहिए, in God we trust. हम परमेश्वर है जिस पे विश्वास रखेंगे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। And now more so, we have to put trust in Jesus. और अब हमें और बढ़ करके हमें यीशु मसीह पे विश्वास रखना है। Amen. आमीन। Coronavirus, the numbers are increasing. और कोरोना वायरस की जो संख्या है जो बढ़ती जा रही है, The scientists are coming with new things, new inventions. और जो वैज्ञानिक लोग हैं वो नए नए शोध के साथ उभर के आ रहे हैं, It's not new information. और नई नई बातों को वो लेकर के आ रहे हैं। And now the latest thing is, और अभी जो सबसे हाल ही में जो बात हमारे सामने आई है, we are saying that the virus spreads from the things that comes out of our mouth, out of our nose. और वो इस प्रकार कह रहे हैं कि जो चीजें हमारे मुंह के द्वारा और नाक से बाहर आती है उसके द्वारा फैल रहा है ये But now वायरस। they are saying और अभी वो कह रहे हैं, it can spread in the air. और वो कह रहे हैं हवा में भी ये इसका प्रचलन हो सकता है। And how can we stop that? तो अब उसको हम कैसे रोक सकते हैं, How can we find that? और उसको हम कैसा पता कर सकते हैं उसके बारे में। Every day the world is showing the helplessness, the hopelessness of our life. प्रतिदिन संसार हमें ये बात करने के लिए हमको ये कह रहा है कि वो कितनी अपने आप में कितना असमर्थ है। Amen. आमीन। Let us put our trust in God. आइए हम अपने विश्वास को सिर्फ परमेश्वर पे रखें, It is time for us to believe in Him. और ये समय आ चुका है कि हमें सिर्फ उस पे विश्वास करने की जरूरत है। We have to yield ourselves to Him. हमें अपने आप को उसके पास लेके जाने की जरूरत है, We have to cry out to Him saying, God, please protect us. और हमें उसके सामने चिल्लाने की जरूरत है, कहते हुए परमेश्वर हमारी सुरक्षा कर, And God will answer our prayers. और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा, And God will take care of और us. परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। And I want to thank you once again for being generous in your giving. और एक और बार मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं जो लगातार हर्षोत्साहित से दे रहे हैं, And your tithes and offerings are coming into our account. और हमारे अकाउंट में हम देखते आ रहे हैं कि आपका जो टाइथ है और आपका जो दशवांश है और भेंट वो आ रही है, And of course, the giving has gone lower than normal. और जो एक सामान्य रूप से हमारा जो देना है परमेश्वर के लिए वो थोड़ा सा कम हो गया But I है, appreciate your giving. लेकिन फिर भी मैं आपके लिए आभार व्यक्त करता हूं। I thank you for being generous
and being faithful in your giving. और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपने देने में विश्वास योग्य और आनंद से दिया है आपने। Giving is the greatest blessing in our life. और परमेश्वर के लिए देना हमारे जीवन में एक बहुत बड़े उपहार के समान है। The word of the Lord says, वचन कहता है it is better to give than to receive. लेने से भला देना उत्तम है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। When we give, we become better than the people who receive. और जब हम देते हैं हम उन लोगों से भले हो जाते हैं जो सिर्फ पाने की उपेक्षा में रहते I हैं। encourage every one of you to give faithfully. और मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा कि आप हर बार आप विश्वास योग्यता से देते रहिए। Our giving should not be affected by the virus. और इस वायरस के वजह से हमारा जो देना है वो रुकना नहीं Our चाहिए। giving should not be affected by our fear. और हमारा विश्वास एक कारण नहीं बन जाना चाहिए हमारे इस देने के रूप में। But we will give because Jesus taught us to give. हमें इसलिए देना है क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें देना सिखाया The है। word of the Lord teaches us to be givers. और वचन कहता है हमें एक देने वाला बनना है। And no matter what, और चाहे कुछ भी हो जाए we will continue to be givers. हम लगातार एक देने वाले बनते Do रहेंगे। you say amen to that? क्या आप उसके लिए आमीन कह सकते And हैं? God will bless us. और परमेश्वर हमें आशीष देगा। We are going to bless our offering today. और आज हम अपनी भेंट को आशीष देने वाले And I'm हैं। going to pray God's blessings come upon your मैं life. प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर की आशीष आप पर आ जाए। And join with me as I pray. और मेरे साथ जुड़ जाइए जैसे हम प्रार्थना करने वाले हैं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता we परमेश्वर, come to the throne of grace today. और हम इस दया के उस भवन के पास आते हैं। Lord God, we are grateful because you have been generous to us, Lord. परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपको कहते हुए कि आप बहुत विश्वास योग्य हैं। Our God is a faithful God. और हमारा परमेश्वर एक विश्वास योग्य परमेश्वर You है। are our Jehovah Jireh. और आप हो हमारा यहोवा हीरे। Lord, you provide for us. आप हमारा प्रावधान करने वाले We हैं। do not need to worry about anything in our life. हमारे जीवन में हमें किसी भी बात की डरने की जरूरत नहीं है, Because you cover us under your wings. क्योंकि आप अपने पंखों के तले हमें छुपा लेते हैं। You open the windows of heaven. और आप स्वर्ग के झरोकों को खोल देते हैं। But you want us to be faithful, Lord. लेकिन आप चाहते हैं कि हम आपके प्रति विश्वास योग्य हो जाएं। Please help us to be faithful. और हमारी मदद कीजिए कि हम एक विश्वास योग्य बने रहें। Lord, even in these challenging times, और इस चुनौती भरे समय में भी the people of CCC, और सीसीसी की कलीसिया के लोग, we have been always faithful to you, हम Lord. लगातार हम आपके प्रति विश्वास योग्य रहे हैं परमेश्वर। Even today as we give, और आज भी जैसे हम देने वाले हैं, whether it is big or small, और चाहे वो छोटा है या देने में बड़ा है, let it be acceptable by you, Lord. होने दीजिए आपके प्रति ये ग्रहण योग्य हो जाए। Take our lives. हमारे जीवन को बदलिए। Take care of our jobs. हमारे काम की रक्षा कीजिए। Take care of our families. हमारे परिवारों की रक्षा कीजिए। Take care of our children. हमारे बच्चों की सुरक्षा कीजिए। Lord, cover us with your precious blood. और अपने बहुत बहुमूल्य लहू से हमारी रक्षा कीजिए। You will glorify your name through our lives. और होने दीजिए हमारे जीवन के द्वारा आपका नाम ऊंचा हो We जाए। give you the praise and glory. और आपको सारा आदर और सम्मान देते हैं। In Jesus' name I pray. और यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। I'm going to share with you a message that God has put in my heart. और मैं आपको एक प्रचार बताने वाला हूं जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है। I believe the Lord will challenge us and Lord will encourage us through this message. और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको उत्साहित करेगा और आपको चुनौती देगा। I want you to look at with me from the book of Acts chapter 3. और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ प्रेतों के काम निकालिए उसका 3रा अध्याय। Amen. आमीन। We read like this from verse 1 to verse 4. और हम पहली आयत से चौथी आयत में तक कुछ इस प्रकार पढ़ते हैं। And now Peter and John went together to the temple at the hour of prayer, the 9th hour. पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms from those who entered the temple. और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे
कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे, who seeing Peter and John about to go into the temple asked for alms. जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। And verse 4, and fixing his eyes on him with John, Peter said, look at us. पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। Today we're going to look at the story of a man who was born lame from his mother's womb. और आज हम इस कहानी में देखने वाले हैं कि एक भिखारी है जो बचपन से लंगड़ा था। Amen. आमीन। He was lame the time he was born. और जब से वो पैदा हुआ वो एक लंगड़ा ही था। What are you going to do with the lame man? और एक लंगड़े आदमी के साथ क्या कर सकते This हैं? was not the time that you can have a wheelchair. और उस समय ऐसा हुआ करता था कि व्हील चेयर भी वो नहीं नहीं हो, था. व्हील चेयर भी नहीं हुआ करती थी। And they don't have an electric wheelchair they can drive around. और आपने देखा कि आजकल के जमाने में इलेक्ट्रिक चेयर होती है, यहाँ वहां जा सकते हैं, उस समय में नहीं हुआ करती थी। No. नहीं। These times the people are a burden to the family. और उस समय में जो ऐसे तरह के लोग हुआ करते थे वो एक परिवार में एक बोझ के समान माना जाते थे। Amen. आमीन। He was a baby that was lame. और वहाँ वो एक छोटा बच्चा के समान वहाँ पे लेटा हुआ था। And then he was taken, as he grows, his leg was always lame. और जैसे वो बचपन में बच्चा था, फिर उसके बाद वो बड़ा हुआ, फिर उसी के समान तब भी वो एक लंगड़े के समान ही था। As he grew up as a boy, और जैसे वो एक लड़के के समान में बड़ा होता जा रहा है, only thing that the parents could think about them, सिर्फ एक ही about चीज him. है, एक ही चीज है जो उसके माता पिता उसके बारे में सोच सकते हैं, Only thing that he can do और सिर्फ एक ही चीज जो उसके द्वारा की जा सकती है, is a profession of begging. उस मांगने में एक महान कलाकार के रूप में जाना जा सकता No, है। begging. या मांगने का Big मांगना। mangana. Okay. Okay? He is a beggar. और वो एक भीख मांगने वाला एक भिखारी है, That is the only way he can bring some money into the house. और इस भीख मांगने के द्वारा ही वो अपने घर में कुछ पैसों को लेके आ सकता है। Now the question is, where are we going to put him to beg? और अब एक प्रश्न उठता है हमारे सामने कि हम उसको भीख मांगने के लिए कहाँ पे रखने There वाले are हैं। different places you can sit and beg. और आप बहुत अलग अलग जगहें हैं जहाँ पर आप बैठ करके भीख मांग सकते हैं, But the best place where you can have somebody to beg, लेकिन सबसे अच्छी जगह है जहाँ पे आप किसी को भीख मांगने के लिए बैठा सकते हैं, that is in front of a religious place. और एक आत्मिक जगह पे जहाँ पे मंदिर है, ऐसी जगहों पे आप भीख मांगने के लिए बैठा सकते In हैं, front of a temple. और एक मंदिर के सामने, Or in front of any other religious place. और कोई भी एक कोई भी आत्मिक जगहों पे आप उसको बैठा सकते हैं। And why do we do that? और तब हम क्यों करते हैं ऐसा? Because the people are going to pray. क्योंकि जो लोग हैं वो अंदर भवन के अंदर प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, People are asking God to bless them. और वो लोग अपने अपने भगवान से कह रहे हैं कि हमें आशीष दे। And as you are going inside, और जैसे वो अंदर जाते हैं, here is a beggar. और वहां पे एक भिखारी बैठा है, Whether he is a lame man और वो एक लंगड़ा भी है, or whether he was paralyzed, और वो शायद हो सकता है कि वो अपने पूरे शरीर में पैरालाइज्ड है। no matter who he is, हमें पता नहीं वो कैसा है, as he's begging, that you feel guilty because you are healthy and he is not. और जैसे वो भीख मांग रहा है आप उसको देख रहे हो और उसके ऊपर आप तरस खा रहे हो कि आप अपने आप में अच्छे हो लेकिन वो अपने शरीर में कमजोर है, And you are going into the temple और जैसे आप मंदिर के अंदर जा रहे हो and you're going to pray to God. और आप परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हो, And what will God think that if you ignore this beggar? परमेश्वर क्या सोचेगा आपके बारे में कि आप अंदर जाने से पहले आपने इसको तिरस्कार कर दिया जो लंगड़ा बैठा हुआ है। Before you enter into the temple, और जैसे आप मंदिर के अंदर जाते हो, you want to do something good, आप एक अच्छा काम करना चाहते हो, thinking that God will be happy with ये me. सोचते हुए कि आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। So you will pull out some money आप अपने जेब से कुछ पैसे को निकालोगे and you will give it to the beggar. और उस भिखारी को आप दोगे, And you will put it in the little tin that is in front of him. और हो सकता है उसके कटोरे के अंदर कुछ डाल दो जो उसके सामने रखा है, The beggar is happy. और जो भिखारी वो
वो खुश है and you are also happy और आप भी खुश हैं because you have done a good thing क्योंकि आपने उसके लिए बहुत अच्छा काम किया and है। you feel good to go into the temple. अब आपको अच्छा लग रहा है कि जैसे आप मंदिर में जाने वाले हैं Almost feeling like saying, God, I have just done a good thing. और अपने दिल में आप अच्छा महसूस कर रहे, कहते हुए परमेश्वर मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है। Because you must have seen me giving that money to the beggar. क्योंकि आपने मुझे देखा है कि जब मैं उस भिखारी को पैसा दे रहा था। Amen. आमीन। So the parents brought this lame man in front of the temple. तो वापस से उसके जो माता पिता है उस भिखारी को जो लंगड़ा है उसको उस मंदिर के सामने ला करके बैठा देते हैं। And there is a gate, the entrance into the temple. और उस मंदिर के अंदर जाने से पहले एक गेट पर एक बड़ा सा दरवाजा पड़ता And है the Bible says और वचन कहता the है name of that gate was Beautiful. और उस गेट का नाम था सुंदर दरवाजा। Amen. आमीन। Maybe the people were going through that gate because it is a beautiful gate. और हो सकता है कि जो लोग हैं वो उस जगह से या उस सुंदर द्वार से इस तरह जाते हैं क्योंकि वो सुंदर है। Maybe more people will be going through that gate. और हो सकता है कि बहुत से लोग उसके द्वार से जा रहे होंगे। So the parents found that should be the best place where their son can sit and beg. तब जब लोगों ने देखा ऐसी स्थिति को तो लोगों को लगा कि उनके बेटे को वहां पे बैठाना अच्छी बात है। Amen. आमीन। And here he comes. और यहाँ पे आप देखते हैं कि वो आ चुका है। The Bible says daily और वचन कहता है कि प्रतिदिन they have to bring him. और उसको वहां पे लाना पड़ता था। He cannot walk on his own. वो अपने आप में चलने में सक्षम नहीं था He need help from somebody. और किसी ना किसी की जरूरत पड़ती थी उसको। So they will bring him in the morning. तब उसको वो सुबह लेकर के आएंगे Then he will sit there till the evening और शाम तक वो वहां पे बैठ जाएगा and he will beg. और भीख मांगेगा। And what all the money that he has collected, और जितना भी पैसा उसने वहां पे इकट्ठा किया है he will take it back to the house. और फिर वो अपने घर पे वापस लेके जाएगा। If he brings more money, अगर वो ज्यादा पैसे लेके आता है the parents will be happy. और माता पिता खुश होंगे, The family will be happy. परिवार खुश होगा And that day that he will get a good meal. और उस दिन उस पूरे परिवार को एक अच्छा भोजन भी मिलेगा। Nobody will call him, you are lame that day. और कोई भी उसे उस दिन ये नहीं कहेगा कि तू लंगड़ा है। But if he is not able to bring some good money, लेकिन अगर आपसे ये नहीं हो पाया कि आप अच्छे पैसे नहीं कमा पाए that will not be a good day for him. तब उस दिन वो दिन उसके लिए अच्छा दिन नहीं होगा। Amen. आमीन। I always wondered what kind of thought that will go through this man every day. और मैं ऐसा सोचने लगा कि कैसा एक विचार उसके दिल और दिमाग में हर दिन दौड़ता होगा। Right from the time that he was able to think, और जिस समय से उसने सोचना प्रारंभ कर दिया, right from the day he was able to evaluate his life, और उस दिन से जब से उसने अपने जीवन का मूल्यांकन शुरू कर दिया, he must be listening from his father, from his mother, from his siblings, the same thing. Look at him. He's lame. He's a burden for the family. हर दिन उसे अपने माता पिता से, भाई बहनों से ये सुनना पड़ता होगा कि देखो एक लंगड़ा इस प्रकार का है। Amen. आमीन। A burden for the family. और परिवार के लिए एक बोझ है, For something that you did not do. उसके लिए जिसके लिए आपने कभी कुछ गलत किया ही नहीं। You have not committed anything wrong. आपने कुछ गलत किया ही नहीं है। You still don't know why this has happened. आपको ये भी नहीं पता है कि ये क्यों हुआ है आपके जीवन में। You look at your brother, आप अपने भाई को देखिए, you look at your sister, आप अपनी बहन को देखिए, they are perfectly normal. और वो अपने जीवन में बिल्कुल अच्छे हैं। They are all running around. वो इधर उधर भाग रहे हैं, They're all doing their things. वो अपने दिनचर्या की बातों को कर रहे They're हैं, going to the school. वो स्कूल जा रहे हैं, They're all growing up. और वो लगातार बढ़ रहे हैं। Look at me. और अपने आप को देखो, Why this has happened to me? क्यों ऐसा मेरे साथ मेरे जीवन में हुआ। You know, some of the things that happen in our lives, और कुछ बातें जो हमारे जीवन में हुई हैं, we don't have an answer. हमारे पास उसके लिए उत्तर नहीं है। We keep on sitting and asking every day, why, all the time. हम हर दिन बैठ करके इस प्रकार सोचा करते हैं, क्यों ऐसा हुआ But है, there is no answer for us. लेकिन हमारे पास उसके लिए कोई उत्तर नहीं है। Many times I say that the only time we'll find the answer will be when we go and stand before God. और हर बार मैं ये कहता हूं कि जब हमारे जीवन का तब हमें सारे जीवन का उत्तर मिल जाएगा जब हम परमेश्वर के सामने
सामने खड़े हो Till जाएंगे that time, we have got no answer for many, many things. और उस समय तक हमारे पास बहुत से प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा। Amen. आमीन। And here he is, और यहाँ पे मैं हूँ carried every day to the begging place. और इस मेरे को जहाँ पे हर प्रतिदिन मुझे भीख मांगने के लिए रखा जाता है From morning till evening. और सुबह से शाम तक Amen. Calling out to everyone. हर एक को बुला रहे हैं He doesn't miss anyone. और वो किसी का भी नाम नहीं भूलता है बुलाने के लिए He is calling, asking for money. और वो बुला रहा है पैसे के लिए। Amen. आमीन। You know, he is sitting there in the same place. आपको पता है वो एक ही जगह पे बैठा हुआ है, We don't know how long. हमें नहीं पता कितने समय के लिए, Maybe months और हो सकता है महीने, or maybe years. सालों, That is his workplace. और वो है उसके कार्य करने की जगह। Everybody is going to the office. हर एक जन ऑफिस जा रहा है, Everybody is going to their shop for business. हर दिन हर एक अपने शॉप में जा रहे हैं, दुकानों में। And here the man is going for his job, which is begging. और यहाँ पे एक आदमी है जो अपने काम के लिए जा रहा है और वो है भीख मांगना। Amen. आमीन। And now, और अब as he is sitting in the same place, जैसे वो उसी जगह पे बैठा हुआ है as he is sitting, watching the type of people going to the prayer, और वो बैठ करके देख रहा है कि किस प्रकार के लोग उस भवन के अंदर जा रहे हैं, मंदिर के अंदर। I think that by this time that he knows a lot of people. और मुझे इस प्रकार से आभास होता है कि अब तक ये वो पहचान गया है कि कितने प्रकार के लोग उस मंदिर के अंदर जा रहे हैं, Because many of the people are coming again and again. क्योंकि कई बार वही जो लोग हैं जो दिन प्रतिदिन आते हैं वही आया जाया करते It हैं, is a temple और वो मंदिर है where people go to worship God. जब परमेश्वर की आराधना करने के लिए लोग अंदर जाते हैं। So he look at them and he knows, maybe he knows some people by name. और वो उनको देखता है और हो सकता है कि उनको नाम से भी जानता हो। Amen. आमीन। And people will smile at him. और लोग हैं उस पे देख के, उसको देख करके एक मुस्कुराहट देंगे। Sometimes they'll put some money, sometimes they won't give any. हो सकता है कुछ कभी वो उसको पैसा दे, कभी ना दे। And he will look at them and he will say, how everything going on? और आप उसको कहेंगे और पूछेंगे कैसा सब चल रहा है। Amen. आमीन। He is beggar, that is his life. और वो एक भिखारी है और वही उसका जीवन है। Amen. आमीन। Sometimes he sees the priest walking there. और कई बार वो देखता है एक याजक को मंदिर के अंदर जाते हुए, And he can hear the singing from inside. और अंदर से वो आवाजों को, गीत की आवाजों को सुन सकता है। And he'll watch people coming out of the temple. और देखता है कि मंदिरों से लोग वापस अपने घर की ओर जा रहे हैं, Some of them are happy. और बहुत से लोग खुश हैं, Some of them are coming the same way. और कुछ लोग हैं जो वापस उसी रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। Amen. आमीन। The life with no meaning. और जो जीवन है उसका कोई अर्थ नहीं A है, life with no hope. और जो जीवन है उसके कोई आशा नहीं A है, life with no change. और जो एक जीवन है जिसमें कोई भी बदलावट नहीं है, That is the life of this lame man. और वही जीवन है जो इस लंगड़े का जीवन है। Amen. आमीन। And our story begins. और हमारी जो कहानी यहाँ पे शुरू होती On है, the 9th hour, Peter and John were going for prayer. और यहाँ पे लिखा है कि जो यूहन्ना और पतरस है वो इस पहर में वो मंदिर में जाते हैं। इसके तरह क्या लिखा है? First, number 1. तीसरे पहर में। तीसरे पहर में. That means 3 o'clock. 3 o'clock. ठीक है? Yeah. So here, whenever you read in the Bible, in Hindi it is written the actual time that we know, but in the Bible days it says the hour, 9th hour. That means you have to add 6 hours more. और आप हमेशा देखेंगे जब आप हिंदी और इंग्लिश की ट्रांसलेशन को देखेंगे तो हिंदी को हमारे समय के अनुसार से बताया गया है, लेकिन जब आप इंग्लिश के खुद की ट्रांसलेशन को देखेंगे वहां पे और 6 घंटे को जोड़ दिया जाता है। 9th hour, 12th hour, and और then you have to add 6 hours more to know our time. और वहां पे कहा जाता है 9वें पहर पे, 12वें पहर पे, और उसके साथ 6 घंटे को और जोड़ दिया जाता है ताकि हम अपने समय के बारे में जान सके। Now the beggar has been waiting, begging from 9 o'clock in the morning
till 3 o'clock in the afternoon. और अब ये मान लीजिए कि ये जो भिखारी है वो सुबह के 9 बजे से लेकर के दिन के 3 बजे तक बैठा हुआ है। He should have been calling out to so many people. और हो सकता है उसने बहुत से लोगों के नाम को पुकारा होगा, He must be begging from so many people. और हो सकता है कि उसने बहुत से लोगों के सामने भीख मांगी होगी। It's almost getting time for him to finish for the day. और अब हो सकता है मान लीजिए कि अब उसके लिए ये दिन खत्म होने वाला है। And now Peter and John are coming. और उसी समय जो यूहन्ना और पतरस उसके सामने से गुजरते हैं। Hallelujah. हालेलुया। 2 men are coming. और 2 आदमी उसके सामने से आ रहे हैं। Maybe by this time not many people are coming for prayer. और हो सकता है कि ये एक ऐसा समय होगा जहां पे बहुत से लोग प्रार्थना के लिए मंदिर में नहीं जाते होंगे। Normally more people come in the morning. और हो सकता है कि बहुत से लोग हैं वो सुबह के समय जाते हैं। Maybe he was waiting for people but not many people were coming. और हो सकता है कि वो आदमी है वो बहुत से लोगों की प्रतीक्षा कर रहा होगा लेकिन बहुत कम लोग आए होंगे। And now he found 2 people. और अब वो यहाँ पे 2 लोगों को देख सकता 2 है people are coming. और 2 लोग आ रहे हैं। He looked at them. और फिर वो उनको देखता है He said, "Sir, please give me something. और वो कहता है श्रीमान कुछ दे दीजिए Look at me. और मुझे देखिए I'm a lame man. और मैं एक लंगड़ा हूँ I've been lame for a long time. और मैं कई दिनों से इस लंगड़े के अभाव में बैठा हुआ हूँ। I have never walked in my life. मैं अपने जीवन में कभी चल नहीं पाया हूँ। I cannot do any work. मैं कुछ काम नहीं कर सकता हूँ। The only way is you should help me." और एक ही बात है वो है जो आप मेरी मदद करिए। These are all the words of a beggar asking for और money. ये सारे जो शब्द हैं जो एक भिखारी इस्तेमाल करता है भीख मांगने के समय। Amen. आमीन। Is asking for money. और वो पैसे के लिए मांग रहा है। And verse 4 reads like this. और वचन जो चौथा वचन है वो कुछ इस प्रकार पढ़ा जा सकता है। And fixing his eyes on him with John, Peter said, "Look at us." पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा हमारी ओर देख। Amen. आमीन। I always use these words to teach on how we work as a team. और हमेशा जब भी इस वचन का उपयोग मैं करता हूं मैं हर बार यह बताता हूं कि एक टीम या समूह के रूप में हम कैसे कार्य कर सकते This हैं। is a small verse, और ये एक छोटा सा वचन है but it teaches so much about working as a team. लेकिन ये हमें बहुत बड़े रूप में एक टीम या समूह के रूप में कैसे काम करना हमें सिखाता है। What does that mean? और उसका मतलब क्या है? It means we work as equal people. और उसका मतलब है कि हम एक दूसरे के हम जो लोग हैं हमें एक समान कार्य करना है। We don't do like I am bigger, you are smaller. हमें इस प्रकार नहीं कहना है कि मैं बड़ा हूं और तुम छोटे हो। God answers my prayer, but God doesn't answer your prayer. परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देता है लेकिन परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं I am देगा। more experienced, you are not very experienced. आपको बहुत अनुभव है लेकिन मुझे कम अनुभव है। So there's a tendency is to put the other person down. और यहाँ पे एक मनोव्यवसाय एक बात करना। है कि हम दूसरे को नीचा दिखाते हैं। Amen. आमीन। Because Peter was always the leader. और जो पतरस था वो हमेशा एक अगुवे के रूप में था। So Peter can always say, "John, I am the one who is a miracle worker." और तब यहाँ पे पतरस कह सकता है कि यूहन्ना रुक जाओ मैं हूँ एक चमत्कार करने वाला। The beggar doesn't know, लेकिन जो भिखारी है उसे तो पता नहीं है। but Peter and John were about to do a miracle. लेकिन जो पतरस और यूहन्ना है वो अभी उसके जीवन में एक चमत्कार करने वाले हैं। Now this is the time for them to do the miracle. और अब यह समय आ पहुंचा है कि पतरस और यूहन्ना के लिए कि वो चमत्कार दिखाएं। So how are we going to do this? अब वो कहते हैं कि हम कैसे करेंगे। Peter is telling John, और पतरस है वो यूहन्ना को इस प्रकार कहता है "We are going to raise this man. और हम इस आदमी को उठाने वाले हैं उसके पैरों पे। And you know how God is using me. और आपको पता है कि परमेश्वर मुझे किस प्रकार से इस्तेमाल करता है। So I'm going to raise this man. और मैं इस आदमी को उसके पैरों पे खड़ा करने वाला You हूँ stand behind me." और आप मेरे पीछे हो जाओ। And he should do like this. और आपको ऐसा करना है। The verse should say something like this. और वचन को कुछ इस प्रकार कहना चाहिए। Peter pushed John back, और पतरस ने यूहन्ना को पीछे धकेल दिया and Peter fixed his eyes upon him. और पतरस ने अपनी आंखों को उसकी तरफ करते हुए And Peter should say like this, और पतरस को इस प्रकार कहना चाहिए। "Don't look at him. और पतरस वो उसको कहेगा कि उस यूहन्ना को मत देखो। I am
am the man. और मैं हूं आदमी, Look at me. मुझे देखिए, Because I'm going to do the miracle. क्योंकि for you. मैं तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार करने वाला हूं। That's the way people work nowadays. और आज के दिनों में लोग इस प्रकार काम करते हैं, Somebody is going to be so big. और कोई तो बहुत बड़ा हो जाएगा They won't let anybody else to grow. और वो ऐसा होने नहीं देते कि उसके सामने वाले के लोग हैं वो अमीर हो जाएं, It is like a one-man show. और वो ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ एक ही आदमी के द्वारा किया जाने वाला काम। Amen. आमीन। But that's not what God wants. ऐसा नहीं है परमेश्वर जो चाहता है। God united us. परमेश्वर ने हमें एक साथ जोड़ा है, God called us to work together. परमेश्वर ने हमें एक साथ काम करने के लिए बुलाया है। When we work together, जब हम एक साथ काम करते हैं, then we will bring glory to God. हम परमेश्वर के नाम के लिए महिमा लेके आएंगे। When we push John away, जब हम यूहन्ना को पीछा कर देंगे, when you stand as Peter the leader, और जब आप पतरस के रूप में एक अगुवे के रूप में खड़े होगे, then God's name will not be तब glorified. परमेश्वर का नाम महिमा नहीं पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। God says, परमेश्वर कहता है my name should be glorified. मेरा नाम ऊंचा होना है। Hallelujah. हालेलुया। Look at what they did at that time. आपको पता है कि उस समय में उन्होंने क्या किया? Look at that verse once again. और एक और बार उस आयत को देखिए, It says, उधर कहती है, fixing his eyes on him with John. और उसके तरफ पतरस के साथ देखने के साथ यूहन्ना के ऊपर भी आंखों को लगाइए। Peter brings John together. I said, let's look at him. और पतरस यूहन्ना को एक साथ लेकर के आता और कहता है, They both are fixing their eyes on him. और वो दोनों मिलकर के अपनी आंखों को उस लंगड़े पे लगाते हैं, He is not pushing John away. और वो यूहन्ना को पीछे धकेल नहीं They're देता looking है, at him together. वो दोनों एक साथ उस लंगड़े की तरफ देख And रहे then हैं। Peter is saying, और तब पतरस कुछ इस प्रकार कहता है, look at us. हम दोनों को देखो। Hallelujah. हालेलुया। I am not big, he is not small. और मैं बड़ा नहीं हूं और ना ही वो छोटा है। Whatever we are going to do, जो भी हम करने वाले हैं, God's name will be glorified. परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Look at us. हमें देखिए, Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। So this man is listening और ये जो लंगड़ा है वो उसको सुन रहा है, and he's thinking, वो सोच रहा है, oh, I'm going to get something from them. ओ मुझे कुछ मिलने वाला है इन दोनों से। He's not thinking anything else. अब वो कुछ बात को नहीं सोच रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Normally when you're walking by the side of a beggar, और मान लीजिए जब आप ऐसे सामान्य रूप में एक भिखारी के सामने से होकर के जाते we हैं, don't stand and talk to him. हम उसके साथ खड़े होकर के बात नहीं करते We हैं, don't say, look at me. और हम उसको इस प्रकार नहीं कहते कि मुझे देख। When you say that, जब आप इस प्रकार कहते हो, the beggar is he's going to give me big money today. और तब जो भिखारी है वो सोचेगा, हाँ ये आदमी मुझे बहुत बढ़ चढ़ करके कुछ देने वाला है। Everybody else is putting the coin and walking away. और बहुत से लोग तो बस ऐसे सिक्के उसके कप में डाल करके आगे बढ़ रहे हैं, But he is taking interest in my life. लेकिन वो ये जो है ये मेरे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छी बातों को देख रहा है। Amen. आमीन। That's what we read in verse 5. और ये बात को हम पांचवी आयत में पढ़ते हैं, He gave attention to them. और उसने संपूर्णता से उन दोनों की तरफ देखा, Because he was expecting something big from them that day. क्योंकि उस दिन वो जो लंगड़ा भिखारी था वो अपने जीवन में कुछ बड़ी बात की उपेक्षा में बैठा हुआ था। Hallelujah. हालेलुया। The beggar is expecting something different. क्योंकि उस दिन वो अपने जीवन में कुछ अलग चीज की उपेक्षा कर रहा But है, he cannot think about anything except money. और सिर्फ पैसे को छोड़ करके वो अपने जीवन में कुछ भी बात की उपेक्षा नहीं कर He सकता can है, only think about more money, less money. और वो बस यही बात को सोचेगा कि उसे ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, Or no money. और शायद ना ही मिले। In this case, he thinks there'll be some money. और इस दशा में वो इस प्रकार सोचता है कि उसे कुछ ना मिले, But he has got no other expectation in his life. लेकिन उसके जीवन में उसके पास कोई भी बातें नहीं है सोचने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। He's looking at him. और वो उसको और both of वो them. उन दोनों को देख रहा है, He's looking at them. They will put their hand in their pocket. और वो उन दोनों को इस तरह से देख रहा है, और जब ये दोनों अपने पॉकेट के अंदर हाथ डाल रहे And हैं, he's thinking like this. वो कुछ इस प्रकार सोच रहा है, Pull out some big money. और बहुत बड़ा पैसा, Make my day. और मेरे दिन को बना I दीजिए, can go back with my home with some good money today. होने दीजिए कि मैं अपने घर में बहुत ढेर सारे पैसे के साथ जाने पाऊं, My parents will be happy. मेरे माता पिता खुश होंगे, Come on, do it. Come on, do और it. करिए मैं तैयार हूं। And the next thing, और जो दूसरी बात है, Peter says,
पतरस कहता है silver and gold we don't have. और सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, Then why are you saying that look at me? तो फिर हम क्यों, तब आप फिर क्यों बोल रहे हो कि मुझे देखो? If you don't have any money, why are you getting my attention? और जब हमारे पास कुछ जब तुम्हारे पास कुछ देने के लिए नहीं है, तब क्यों आप अपने तरफ हमें केंद्रित कर रहे हैं? Silver and gold I don't have. और जो सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, But there is something that I have, लेकिन कुछ एक बात है मेरे पास which we are about to give it to you. जो हम अभी आपको देने वाले हैं। But what we have लेकिन हमारे पास क्या है? is better than silver, और वो सोने और चांदी से उत्तम है, better than gold, और सोने से उत्तम है। better than any money that you have seen in your life. अपने जीवन में आपने जो भी रकम को देखा उससे बेहतर चीज है, Because we're going to change your life. क्योंकि हम आपके जीवन को बदलने वाले हैं। We are going to transform your life. हम आपके जीवन को संपूर्ण रीति से बदलने वाले We're हैं। going to do a miracle in your life. हम आपके जीवन में एक चमत्कार करने वाले And he हैं, held on to his hand. और उसके हाथ को पकड़ लेते हैं, And he said, in the name of Jesus, और यीशु मसीह के नाम में rise up. और उठ जा। And immediately, और उसी समय his both legs, उसके दोनों पैर, right from the time that he was born, जिस दिन से वो पैदा हुआ था, which were like springs. और वो एक स्प्रिंग के बराबर ऐसे थे, Oh, no strength in those bones. और उन दोनों हड्डियों में कोई भी ताकत नहीं It's है, all twisted. और वो पूरे मुड़े हुए हैं, From his hip up, the body is okay. और इसके जो घुटने से ऊपर तक उसका शरीर अच्छा है, But the legs were so small. और उसके जो पैर हैं बहुत ही छोटे हैं। But when Peter said, rise up, लेकिन जब पतरस कहता है उठ जा, the power of God came और upon him. परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर उतरती है, And the legs that were like springs just straightened up. और उसके पैर के अंदर की जो स्प्रिंग है वो बिल्कुल ठीक हो जाती It है, received strength. और अपने आप में वो सामर्थ पा लेता है। For the first time. और पहले बार उसके जीवन में, Remember this. और इसको ध्यान Right from रखिए, the day he was born, और सब जिस दिन से वो पैदा हुआ his है, legs were like this. उसके पैर कुछ इस प्रकार थे, And when this stranger took hold of my और hand, जब उसके जीवन में ये ऐसा हो पाया, something is happening. कुछ हो रहा है उसके जीवन में, Something is happening to my legs. उसके पैरों में कुछ हो रहा My है, legs are straightening और out. मेरे पैरों में सामर्थ आ रही My है, bones are getting और strong. जो मेरी हड्डियां हैं वो मजबूत हो रही I हैं। want to stand up. मैं खड़ा होना चाहता हूँ, I cannot sit अब anymore. मैं बैठ नहीं सकता हूँ, Rise up. और उठ जाओ। And he rose. और from वो the उठ grave. गया, Hallelujah. हालेलुया, He was healed. और वो चंगा हो चुका था। Amen. आमीन। That was a day in his life that he never expected a miracle. उस दिन के बारे में उसने कभी भी सोचा भी नहीं होगा, पर Hallelujah. हालेलुया, The day came in his life. और वो दिन आ चुका था उसके जीवन में, The day that he never expected. वो दिन जिसके बारे में उसने कभी भी उपेक्षा नहीं की He होगी। never thought that his life will be changed. उसने कभी सोचा नहीं होगा कि उसका जीवन बदलने वाला He never है, thought that he will be transformed. उसको ये नहीं पता था कि उसका जीवन अब बदल जाएगा। But here come two strangers. लेकिन यहाँ पे दो अजनबी उसके पास आते And the man हैं, held on to my hand. और उससे कहते हैं कि हमारे हाथ को पकड़ लो, And he mentioned the name. और उनका नाम बुलाया जाता And है, his name was Jesus. और उसका नाम है यीशु मसीह। Hallelujah. हालेलुया। And in Jesus' name, और यीशु मसीह के नाम में the miracle take place. और एक चमत्कार हो जाता My है, life was transformed. उसका जीवन बदल जाता है। Hallelujah. हालेलुया। The day came for me. और दिन आ चुका था उसके लिए। Amen. I'm going to finish. I have got a lot more to say, but I'm going to finish now. मैं यहाँ पे खत्म करने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास कहने के लिए बहुत सी बातें हैं। Amen. आमीन। He got up. वो खड़ा हो गया, He leapt up. That means he jumped up. और वहां पे कहते हैं, वचन कहता है कि वो कूद करके उठ गया। It is not like some of the miracle meetings that you and I go. और ऐसा नहीं है कि आप और मैं कोई भी चमत्कार करने वाली बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, ऐसा नहीं है। And some lame people are come for prayer. और एक साधारण से लोग, ये लोग आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आते हैं, And they say they bring the volunteers will bring them to the platform. और वो बोलते हैं लोगों को कि उनको प्लेटफॉर्म पे लेकर के आओ, And then they will say the Lord has healed him. और वो कहेंगे कि परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया And you है, look at the man. और आप उस
उस आदमी को देखेंगे and the preacher will say, come on, walk. और वो कहते हैं, वो कहेंगे, प्रचारक कहेगा आओ चलो चलो, And he is walking like this. और वो कुछ इस प्रकार से चल रहा है, उसका पैर हाथ पैर टेढ़ा है। No, नहीं, that is not the healing we talk about. और वो चमत्कार है, उसके बारे में, ऐसे चमत्कार के बारे में हम बात नहीं कर रहे He हैं। jumped up और वो खड़ा हो गया, and he stood और वो खड़ा हो गया, and he started walking. और वो चलने लगा। Where is he going? और अब वो कहाँ जा रहा है? He going with Peter and John. और वो पतरस और यूहन्ना के साथ चलना शुरू करता Where are है। they going? और वो कहाँ पे जा रहे हैं? They're going for prayer. और वो प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, Going into the temple. और वो मंदिर के अंदर जा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। And what is he doing? और तब वो क्या कर रहा है? He's not just walking and say, oh, that's good. और वो ऐसे करके नहीं चल रहा, अच्छी बात है? No. नहीं। It says like this. और इस प्रकार कहता है, In इस verse प्रकार, 8, it says, और 8वां वचन कुछ इस प्रकार कहता है, walking and leaping and praising God. वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। Hallelujah. हालेलुया। Not only walking, और सिर्फ चलना ही नहीं, not only jumping up and और down, सिर्फ उछलना कूदना ही नहीं, but he is praising God. और वो परमेश्वर की आराधना कर रहा He है। is praising Jesus. वो प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहा The है, name that brought the change in his life. और उस नाम की आराधना कर रहा है जिस नाम ने उसके जीवन में एक बदलाव लेके आया। Hallelujah. हालेलुया। The people saw him. लोगों ने उसको देखा, Most of the people know him. और बहुत से लोग तो उसको जानते थे, They saw him walking. और उसको देखा, आज उसको चलते हुए देखने And लगे, they also started praising God. और वो लोग भी आराधना करने लगे। What an amazing day. और कितना अद्भुत दिन है, A miracle day for that man. और उस आदमी के लिए एक मिराकल वाला दिल था, And a miracle for everybody to see. और एक सबके लिए एक चमत्कारी दिन था वो। Amen. आमीन। He went into the temple. और वो आराधनालय में जाता है, Let me finish that here. और यहाँ पे मैं खत्म करने वाला हूँ। This man was sitting there for so many years. और ये जो आदमी लंगड़ा है, वो कई समय से वहां पे बैठा हुआ He है। has seen so many people going into the prayer. उसने कई लोगों को मंदिर के अंदर जाते हुए देखा होगा। Do you know about this man? और आपको पता है इस आदमी के बारे में? He knows all the people who go for prayer. इस आदमी को सारे लोगों के बारे में पता है जो मंदिर के अंदर जाते He हैं, knows all the different priests going to do different prayers. और वो उन सारे याजक के बारे में जानता है जो अलग अलग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, He knows the song that they sing inside. और उन्हें ये भी पता है कि कौन कौन से गीत गाए जाते हैं आराधनालय में। He heard all the things. उन सब बातों के बारे में इसको पता है, But what's the difference? लेकिन इन सब बातों में अंतर की बात क्या He है? knows about the temple. और उसको उस मंदिर के बारे में भी पता है, He knows about all the prayer, all the songs there. और उस आराधनालय में हर एक प्रार्थना, हर एक गीत के बारे में उसे पता है, But he has never been into the temple. लेकिन वो कभी भी अपने जीवन काल में मंदिर में नहीं गया But था। when Jesus changed his life, लेकिन जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदला, he walked into the temple to praise him. और वो आराधना के लिए अंदर जाता है आराधनालय में। Amen. आमीन। My dear friend, मेरे प्रिय मित्रों, there's a day coming for you. एक दिन आने वाला है आपके लिए भी। You're saying that your life is finished. आप कहते हो कि आपका जीवन खत्म हो चुका है, You're saying, no, this is my life. और आप कहेंगे कि नहीं, मेरे जीवन तो यही है। No, my dear friend. नहीं मेरे प्रिय मित्रों, There's a Jesus is coming to you. और यीशु मसीह है एक जो आपके जीवन में आने वाला A है, man of God will hold your hand and lift you up. और एक दिन ऐसा आएगा, परमेश्वर का एक सेवक आपका हाथ उठा करके खड़ा करेगा। That will be your day. वो दिन आपका होगा। Let me finish like this. और मुझे इस प्रकार से खत्म करने The दीजिए। day is coming. और दिन आने वाला है, It could be today. और हो सकता है It आज, could be tomorrow. कल, But it is coming. और लेकिन वो आने वाला है। And you will become a true worshipper. तब आप उस दिन एक सच्चे आराधक बन जाएंगे, You will glorify God. आप उसके नाम को ऊंचा करेंगे। Pray with me, please. आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। Heavenly Father, what an amazing story. और स्वर्गीय पिता परमेश्वर, कितनी अद्भुत कहानी है, Only Jesus can change his life. और सिर्फ यीशु मसीह उसके जीवन को बदल सकता था। I pray for everyone who is praying with me, और Lord. मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, Father God, I pray that the miracle day will come into their lives. मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में भी एक चमत्कार का दिन आने दे परमेश्वर। Show your powers to everyone. अपनी सामर्थ को सब पर भी दिखाइए, Help us to wait in hope and faith. और होने दीजिए कि हम आशा और विश्वास की बाट जोते रहें, In Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन। The grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father God, and the fellowship of the Holy Spirit be with all of us from this time forevermore.
Amen. आमीन Amen. आमीन। God bless you, my dear friends. प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपको आशीष दे। So wonderful to worship God together. और बहुत अच्छा है परमेश्वर की आराधना एक साथ करने के May लिए। the Lord take care of you. परमेश्वर आपकी चिंता करता है Be committed to the Lord. और परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रहिए Be careful. और ध्यान रखिए Of course, the Lord will protect us. और परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। I love you very much. मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। And I miss you. मैं आपको याद करता हूँ And I'll be waiting for the day that we can meet together again. और मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब एक दिन हम आप सबसे मिलने वाले हैं। God bless you real good. परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे।